Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic wise news analysis where I'll be covering the news from Hindu and Indian Express. So these are some of the important newspaper that you have to study. And the USP of this initiative is that we try to cover the news in point format and the important news are discussed so that it will help you in prelims and mains examination. So let's get started. So today is 11th of November and these are the list of the topic for the day. So the first topic is World Largest Toy Museum which is coming in Gujarat. The second is Prime Minister has addressed 20th SCO Summit. This is an important news. The second is a structural problem with the SPCB, State Pollution Control Board. And the last topic is the strengthening public health capacities in disaster. So how the things would take care after disaster and what are the things that has to be taken care in terms of the public health capacities. So these are some of the important articles and editorial for the day. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video so that you could practice some important question and you can also know the explanation of the previous day questions, right? So stay tuned till end of this video. And those of you who are preparing for mains this year, we are offering an evaluation program either this year or coming years. So what you can do, you can enroll for this course. You can find the description in the video and there the dedicated link has been provided to enroll. We are offering a discount where 20 questions would be evaluated in 18 rupees. So do check the description section and you can register from there itself. Now, before we start with the news analysis, important news that is there. Although being an aspirant of civil services examination, it is equally important for you to understand how the democratic processes work. So I'm not considering it as an in-depth analysis, but just a superficial idea that the Bihar election result has been declared and NDA has emerged as the single largest party. So this is NDA, National Democratic Alliance, and the part were with Mahagathbandhan. They were the other alliances that was there in the elections. So this is the bifurcation of the scorecard, basically talking about the BJP. They have emerged as a 74, JDU 43, and these are the other alliances. NDA got 125 and Mahagathbandhan got 110, right? So this is how the election was contested among 243 seats in the state assembly. And if equally important being an administrator in the district, you have to be thorough with the how things work and how democratic processes work. So this was to get an idea. Now coming to the news analysis, the first topic is World Largest Toy Museum. This is coming up in Gujarat and this has been reported in the Indian Express. This is important for your general studies paper 3. जिस समय से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वोकल से लोकल करने की ज़रूरत है और इंडिया को टॉय हब बनाने की ज़रूरत है, मन की बात में जो बातें कही गई है, इन लाइट ऑफ दैट ओनली द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम कंक्रीट एक्शन और ये आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Now the Gujarat government is planning to build a world toy museum. So the project has been envisaged by the Prime Minister with the aim to push the homemade toy industry in India because still we are dependent on China in terms of the toy, electric equipments and other things, right? तो प्राइम मिनिस्टर वांटेड कि आत्मनिर्भर भारत का जो मेन एम है उसमें उसको कहीं ना कहीं जो हमारी टॉय इंडस्ट्रीज है उसके तरफ भी लाने की ज़रूरत है. एंड एट प्रेजेंट द वर्ल्ड इज़ द लार्जेस्ट टॉय इंडस्ट्री म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन यूएस. जो मिसोरी नाम की जगह है यूएस में, वहाँ पे अभी सबसे बड़ा म्यूजियम लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड का, जो कि 10 लाख टॉयज डिस्प्ले करती है ऑन स्पॉट. Now, after the inception, after this final completion of the Gujarat project, this would be the world largest toy. Basically, जो भी toy museum की अगर बात करें, so this would be the world largest toy museum after the US. अभी के लिए मसूरी में जो है वो नंबर 1 पे. Now, execution plan की अगर बात करें, how things would be executed. So the Gujarat government is planning to build the largest toy museum in the world, showcasing 11 lakh toys across the country. 11 लाख जो टॉयज होंगे उनके डिस्प्ले लगाई जाएगी वहाँ पे. एंड दिस वुड बी सेटअप इन द गांधीनगर, जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, उस पर इसकी एस्टैब्लिशमेंट होगी. एंड द म्यूजियम वुड बी कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years to 5 years and the estimated cost is 1500 crore rupees. So let's see how this will boost the further manufacturing of toys in India. और जो चाइल्ड यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, विच ऑल्सो फंक्शंस
अंडर द गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने उनको नोडल बनाया गया है, नोडल एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट. And the state has already granted Children University for 300 acres in the gift city to expand its campus around 8 to 10 acres, right. Now अगर बात करें जो टॉय भवन है या फिर म्यूजियम प्रोजेक्ट जो होगी, ये डेडिकेटेड भवन होगी जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली टॉय के प्रोजेक्ट्स होंगे, और यहाँ पे 11 लाख टॉय प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने की बात की गई है, एक्सक्लूडिंग द गन्स आइटम, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि किसी बच्चे के मेंटल स्टेट को इट मेक्स ससेप्टेबल टू द वायलेंस. कोई भी ऐसी चीज़ जो वायलेंस को प्रमोट करती है, उस तरह की चीज़ें को म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा. नाउ अमॉन्ग 11 लाख टॉयज जो बेसिक कैटेगरी बनाई गई है टॉय की, वो है एजुकेशन पर्पसेस से साइंस, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, कल्चर और सोशल साइंसेस. तो इन सारे सेक्टर से ही टॉय डिस्प्ले किए जाएंगे म्यूजियम में, ताकि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन हो सके. Now focus of the museum will focus on the history of India, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, जिस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, जो लैंडमार्क मोमेंट्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो गगनयान प्रोजेक्ट की बात हो या फिर ईवीएम मशीन जिस तरह से इंडिया में बनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी 1857 में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स टॉय म्यूजियम में भी डिस्प्ले किए जाएंगे. And with the help of the DRDO, the replicas of electronic operated, battery operated, solar based rocket जैसे पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ये सारी चीज़ों की भी वहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी, ताकि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इंडिया में स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवलेंट हो सके. Now the state will also rope 100 of the trained artisans, local artisan जो होंगे, जो कि ट्रेडिशनली अपने काम को हुनर दिखा करके टॉयज इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं, सो दे वुड बी ऑल्सो अप्रिशिएटेड. अगर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट उनको बैकएंड में हायर करके उनसे भी उनको भी रोजगार दे सकती है, राइट. Now coming to the other topic, that is Prime Minister has addressed the 20th SCO Summit. तो SCO Summit अगेन आपके जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए, बिकॉज दिस इज देयर इन द न्यूज़, और SCO Summit इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो इन द रिसेंट SCO Summit प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया है कि जो हमारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हर एक कंट्री के लिए जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और जो सोवरनिटी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर इन द इंपॉर्टेंट फोरम लाइक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को समझें और उसको सोवरनिटी को भी अप्रिशिएट करें. नाउ ही रिमाइंडेड दैट इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली सपोर्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है. सो दे हैव साइटेड द एग्जांपल ऑफ द छाबहार पोर्ट एंड नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर्स, राइट. So these corridors would be again very effective because overall development की अगर बात करें तो it connects a lot of countries. Now he had also made an indirect reference to the Chinese infrastructure project that is there in the Pak occupied Kashmir, that is POK. I have shown you a map जहाँ पे मैंने COK और POK दोनों के बारे में आपको मैप पे दिखाया हुआ है. Now he said, the Prime Minister has said that the vaccine producing capacity भी है जो इंडिया की, वो ह्यूमैनिटी के लिए जो बनाई जा रही है वैक्सीन, उसमें इंडिया जहाँ तक हो सकता है पूरे वर्ल्ड को हेल्प करेगा, राइट. सो दीज वर सम ऑफ द की इनपुट्स दैट वर प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. नाउ इंपॉर्टेंस क्या है इस समिट की? तो जो 20th समिट थी, इस बार की जो समिट थी वो 20th समिट थी. नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये नंबर पूछ लिए जाते हैं. So this is like head of all important that president जो वहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सो दे वुड हैव वर्चुअली फॉर्मेट जहाँ पे जो लद्दाख की जो स्टैंड ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख में LAC में खास करके, तो वहाँ पे इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला जाए. एंड दिस टाइम SCO इज अगेन एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ LAC. तो चाइनीज प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जो डिफिकल्टीज है अमंग द मेंबर एंड डिफरेंसेस दैट शुड बी रिजॉल्व विद अ डायलॉग. सो चाइना इज ऑल्सो एग्रीड कि ओनली वे आउट इज द डायलॉग. बात करना सॉल्यूशन है, लड़ाई करना या किसी दो कंट्री के बीच में वॉर होना इज नॉट अ सॉल्यूशन. Now the Chinese president has also said that he will be deepening the solidarity and mutual trust to resolve the disputes, right? जो भी disputes हैं उसको dialogues
और कंसल्टेशन के थ्रू इंडिया के साथ वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट. सो दे आर प्रोएक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड विथ अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया. ना ग्लोबल गवर्नेंस एंड यूएनएससी की बात की गई है. इंडिया की तरफ से जो बातें रखी गई है पहले से भी, मैं उसको फिर से एक बार आपको रिटरेट कर दे रहा हूँ. नाउ इंडिया हैज सेड दैट द चेंजेस इन द ग्लोबल गवर्नेंस वुड फोकस ऑन इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी, राइट. जो नेक्स्ट ईयर से इंडिया की जो टेन्योर स्टार्ट हो रही है 2 साल के लिए फॉर द यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर. सो इंडिया वुड बी प्रोएक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर द यूएनएससी. और 2021 से इंडिया विल टेक पार्ट इन द यूएन Security Council as a non-permanent member. As a member, UNSC has attended over changing global rules and governance. तो बात की गई है जो 5 परमानेंट मेंबर है अभी वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी एक्सपेंशन की भी बात काफ़ी ज़्यादा चली है एंड वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट, राइट. तो इस मेंबर्स को यहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत है बिकॉज इंडिया ने जिस तरह से यूएनएससी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इंडिया इज अ कंट्री विच मस्ट गेट द परमानेंट सीट इन द यूएनएससी. तो पीएम ने कहा कि जो नेशनल म्यूजियम फॉर इंडिया विल होल्ड अ एग्जीबिशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड एससीओ कंट्रीज, राइट. जितने भी एससीओ कंट्रीज हैं उनके लिए एक नेशनल म्यूजियम भी बनाई जाएगी जहाँ पे सारे एग्जीबिशंस को बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा, राइट. सो गवर्नेंस रिलेटेड यूएनएससी से आपसे मेंस में भी सवाल पूछे जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming to the other topic, this is from the Indian Express and editorial. This talks about the structure problem of the SPCB और आपकी ये environment point of view से काफ़ी ज़्यादा important है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में. और 4 में केस स्टडी से भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट. तो यू शुड इंश्योर कि आपको चीज़ें पता हो. Now there is now growing appreciation जिस तरह से public health emergency की बात करें, over millions of Indian have triggered the health elements, जहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में अभी भी दैट इज अस्थमा, डायबिटिक और कैंसर, राइट. तो जो पब्लिक फोकस है खास करके जो हमारी तरफ से जो ज़रूरतें जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है दैट इज स्टेबल बर्निंग को रोका जाए. एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस है इंडिया में जो कि एयर पोल्यूशन को प्रमोट कर रही है, राइट, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, स्टेबल बर्निंग एंड ट्रांसपोर्ट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. If not controlled, it can have a severe adverse consequences to air pollution and human beings. Now, to address this crisis, there are plethora of rules. बहुत ज़्यादा rules है इंडिया में, but practical implication की अगर बात करें, implementations की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें concrete नहीं है. Laws है, specified agencies है, but they are only on the paper. यहाँ पे practically बहुत चीज़ें impressive नहीं दिखती है. Now, but our fight only is to implement these rules. But it is equally important कि जो rules बने हुए हैं उसको properly implement किया जाए ताकि कुछ concrete results मिले इसके. Now CPCB जो हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके बारे में कुछ बातें कही गई है फंड्स को लेकर के और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अंतर में है, राइट. सो दीज आर जनरली फंडेड रिसोर्सेज. स्टेट बोर्ड ऑफ अगर बात करें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, दोनों अपने अपने जगह पे फंड मिलती है इनको. नाउ दे आर चार्ज्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द CPCB के जो राइट्स होते हैं उनको, जो रीट्स बेसिकली जिनको कहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को. और द टेक ऑफ द रोल ऑफ द फील्ड ऑफिसर ऑफ द, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे ये बताई गई है कि जिस तरह से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरह से एक्चुअल में काम करें और प्रॉब्लम कहाँ पे है. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, they are in charge of inspection wide range of infrastructure and activities. Now they also have the duty to conduct the awareness program such as those with the indirect farmer in the case of the stubble burning. जो stubble burning की जो problem है उसको भी solve करने में ये जो officers होते हैं they can play a huge role. But at the same time यहाँ पे अभी भी in India we are facing this problem कि जो field officer है they are not performing very well. Now with the chronic problems, जहाँ पे जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो पॉल्यूशन रूल्स हैं उनको वो एडिक्वेटली और बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, राइट. तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की अगर बात करें SPCB की, जो हमारी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, तो मैं आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं. यू कैन राइट दिस पॉइंट डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन. So there are at least 5 structure problem, right? So first is critical shortage of the staff in the most of the
SPCB जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जितने भी स्टेट्स में, उनमें शॉर्टेज है मैन पावर की, वहाँ पे लोग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जितने स्टाफ्स होने चाहिए स्टाफ की अंडर एम्प्लॉयड है। नाउ एंड बेसिकली बात करें एक इलस्ट्रेशन की, तो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वहाँ पे स्टिल ओनली 70% ऑफ द स्टाफ हैव द शॉर्टेज, राइट। 70% स्टाफ की शॉर्टेज है, दे आर वर्किंग ओनली विद 30% ऑफ द पोटेंशियल्स। Now, second important problem is that they do not get development of any specialization. उनको कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है जिससे वो आज की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको क्योर कर पाए या उसको आइडेंटिफाई कर पाए। नाउ CPCB हैज़ अ डिसेंट वर्क एंड रोबस्ट लेबोरेटरीज, जहाँ पे अगर उसको कंपेयर करेंगे आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो उनकी लेबोरेटरी काफ़ी अच्छी है। साइंटिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं इस लेवल पे। बायो वेस्ट और हजार्डियस जो वेस्ट है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए CPCB ने कुछ अपने हिसाब से एक्शंस लिए हुए हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करोगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रेटिफाइड सिस्टम्स हैं। और जो पब्लिक कैटेगरीज हैं, खास करके जो पॉल्यूशन की कैटेगरीज की अगर बात करूँ, एंड इट इज़ एक्सपर्टीज़ जो होनी चाहिए जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है वो हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं है। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जो एटमॉस्फेयर है या जो पॉल्यूशन है वो हमारे किसी एक स्टेट को नहीं इम्पैक्ट कर रहा, वो पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट कर रहा है, पूरे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो डिसीजन होनी चाहिए वो जितनी फैसिलिटीज़ स्टेट को दी जा रही है या सेंट्रल को दी जा रही है वही सेम चीज़ें यहाँ पे स्टेट को भी मिलनी चाहिए। Now thirdly, जो हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दे नेसेसरी लैक्स द स्किल ऑन द पॉल्यूशन। जो पॉल्यूटर्स होते हैं वहाँ पे उनके खास करके जो मैंने आपको बताया जो जिस तरह से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सो दे लैक द एडिक्वेट स्किल्स। फोर्थ है जो SPCB है वहाँ पे दे आर क्रॉनिकली अंडर फंडेड, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंडिंग नहीं दी जा रही जिसकी वजह से उनके काम में भी इम्पैक्ट होती है। Now finally, the official at the time are given additional responsibility, overload because कहाँ पे because they are understaffed, right? Understaffed होने की वजह से overloading ज़्यादा होती है। और एक इंस्टांसेस दी गई है हरियाणा की जहाँ पे फार्म आर अंडर इट्स एम्बिट, पोल्ट्री भी उनके अंदर दे दिया गया है। अगर इस तरह से काम ओवरलोड होगा तो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ पाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वली सारे लोगों को एम्प्लॉयड दिया जाए और जो वर्क फोर्स में जो स्कैरसिटी है उसको फुलफिल की जाए, राइट। Now coming to the other topic, that is strengthening the public health capacity in disaster. This is again important for your general studies paper 4, right? Disaster management के जो पेपर है वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी important है, बट यहाँ पे we are specifically talking about the public health care sectors. Now अगर यूरोप की अगर बात करें, जिस तरह से यूरोप में सेकेंड वेव कोविड-19 की देखी गई है, एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है और इंडिया इससे कहीं भी अछूता नहीं है, बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रिडिक्टेड कि विंटर में भी इंडिया में केसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नाउ व्हाइल अपियरिंग बेसिकली इट इज़ अनलाइकली दैट कि हम इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कि इंडिया का इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है उनके मुताबिक कि विंटर में भी केसेस बढ़ेंगे। नाउ सेकेंड वेव इज़ नेसेसरी नॉट डेंजरस नॉट वैक्सीन अवेलेबल। अभी हमारे पास ना ही वैक्सीन है ना ही हमें इसकी श्योरिटी है कि कैसे सेकेंड वेव के साथ इंडिया लड़ाई करेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कलेक्टिव साइकी है, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर हर एक इंसान के लिए, वो बनाई जाए। अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको लगातार चलाने की ज़रूरत है, सो दैट पीपल इक्वली अंडरस्टैंड दैट दिस वायरस इज़ नॉट येट कंट्रोल्ड एंड इट इज़ ड्रास्टिकली गेटिंग मल्टीप्लाइड इन दिस फॉर्म, राइट। नो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात की गई है, किस तरह से ये एक पावरफुल टूल है जो कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में या ड्यूरिंग पेंडेमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा पावर देती है स्टेट को एक एक्शन लेने के लिए। तो 2005 में इसको इनेक्ट किया गया था, विच लेड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग एनी डिजास्टर इन द कंट्री। और जो DM एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इन्वोक सिंस अर्ली कोविड-19, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस कंट्रोल, मास्क को लेकर के या मेडिकल सर्विसेज को लेकर के भी इसमें प्रोविजंस हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। नाउ इट लार्जली रिएक्ट द एडहॉक मेजर्स, जैसे कि अगर बात करें सिस्टमैटिक सिस्टम प्रिवेंशंस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर ऑफ ऑल काइंड्स, राइट। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है दैट कंसिडर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज सेक्टर इंक्लूडिंग द हेल्थ। हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर ने
कोविड-19 के टाइम पे एक अननेसेसरी प्राइस चार्ज किए लोगों से और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो ड्रॉबैक इन द प्राइवेट सेक्टर्स। तो कैपिंग की अगर बात करें, जो हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने ओवर चार्ज किया कोरोना के टाइम में, कोरोना मेंटेनेंस चार्ज और XYZ चार्जेस को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने बाद में इसमें कैपिंग लगा दी थी। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जिनके हॉस्पिटल के लाइसेंस को परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। सो हेल्थ सिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर डू नॉट नेसेसरली फॉन्डर एंड डिजास्टर, बट इंडिया की जो प्राइवेट लैंडस्केप है वो कैरेक्टराइज होती है विथ वीक रेगुलेशन एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी इंडिया में अगर हॉस्पिटल रेगुलेशन की बात करें तो सरकार बहुत ज़्यादा इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं बनाई है, एंड दैट इज़ द रीजन दिस सेक्टर हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड, और इसका गलत फ़ायदा इस सेक्टर ने कोविड-19 के टाइम पे उठाया है। Now, during the disaster, the limited regulatory ability could further been compromised. तो ज़रूरी है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ लाया जाए कि कोई भी हॉस्पिटल अगर किसी इंडिविजुअल को ओवर चार्ज करता है तो उसकी लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल कर दी जाए, राइट? सो दीज वर सम of the important suggestion that also you can write in the examination. Now, many of these hospitals, small hospital, has also unsuitable meeting and disaster related needs, right? So ये कुछ important drawbacks थे, और हॉस्पिटल के बारे में एक आप अगर इथिक्स में क्वेश्चन अपेयर कर रहे हैं तो इस तरह के पॉइंट्स को आप जरूर इंक्लूड करें। तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है? तो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो ये ज़रूरी है कि हम इस टाइम पे इस सारी चीज़ों को ध्यान दें, एंड गवर्नमेंट शुड कम अप विद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दैट रिक्वायर द स्टेट एंड हॉस्पिटल टू मेक द इमरजेंसी प्लान। क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, चाहे वो परसेसिव हो या प्रोएक्टिवली किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लीगल मैंडेट इन द पब्लिक सेक्टर, राइट? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी, पब्लिक सेक्टर्स में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, और खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके प्राइजेस में जो चीज़ें बढ़ी हैं उनको कंट्रोल किया जाए, राइट? नाउ देयर इज स्टिल अ होप दैट ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट विल हैव अ प्राइमरी केयर। तो सारे सिटीजन को ध्यान में रखते हुए जो भी मेन प्रोविजंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इंडिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको अच्छी की जाए, दुरुस्त की जाए, राइट? So this would be the way forward. Now coming to the answers of yesterday questions, जो कल के सवाल थे उसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, पहला का C, that statement 1 is correct, that the move permit the masala bond to attempt increase the international status of rupees, and statement 2 is also correct, that the offshore investor earn better return investing in masala bond than in the home country. So this I've taken from the Business Line and the Hindu. Now coming to the second question of the day, this is the second explanation. For the correct option here is B, that statement 1 is incorrect, that the Gadar party was a revolutionary group that revolves around the weekly newspaper Gadar. And second statement is correct, that the Gadar party headquarters was located in San Francisco, right? So NCERT और बिपिन चंद्रा, both of the books are very important, और आप स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की भी बुक भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। Now coming to the MCQs question of the day. So the first question is from the Indian polity. Consider the following statement with regards to the impeachment of the president. So the impeachment charges initiated on the upper house of the parliament, and the impeachment of the president is a quasi-judicial process, right? So you have to tell which among the following is the correct option with regards to the impeachment. Just let me know A, B, C, D, whatever is the correct answer. You can write their answer in the comment section down below. Now coming to the second question of the day with economy, that is PCA के बारे में आपको बताना है, prompt corrective actions के बारे में. So it mandates the bank to cut the lending of the corporate to focus on reducing the concentrated loan in the certain sector, and it restricts the bank from opening the new branches and paying the dividends, right? So just choose the correct option A, B, C, D. अगर आपको PCA के बारे में कुछ और information है तो आप हमें उसके वो भी share कर सकते हैं, बता सकते हैं, right? So do participate, write your answer in the comment section down below. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services for more informative videos and compilations. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.